राजे वाउचिंग के चैप्टर तो बाद आप नैक्सट स्टार्ट करना है वाउचिंग पर्टिकुलर ट्रांजैक्शनस की। ठीक है, जिमें सिलेबस विच तुहाडे दो मेन टॉपिक्स ने, एक तो हैगा ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन नूं लैके, एक हैगा कैश ट्रांजैक्शन नूं लैके। ठीक है, सो ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन वाला चैप्टर आप स्टार्ट करन लगे हाँ। ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन च आ जांदा राजे जिहड़ियां ट्रेडिंग अकाउंट्स होंदे हैं ओपन होंदे हैं, जिमें परचेज हो गया, सेल्स हो गया। ठीक है, इन्हां ते बेसिकली कॉन्सनट्रेट किया जाता है इस चैप्टर विच। ठीक है, कि ट्रेडिंग जिहड़ी परचेज एंड सेल्स अकाउंट होंदे ने भी उन्हां नूं कंपनी किवें रिकॉर्ड करदी है। ठीक है, तो ऑडिटर उन्हां दी किवें वाउचिंग करदा या चैकिंग करदा। ठीक है, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मेन ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ टॉपिक कवर करांगे ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स वाला। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ स्टार्टिंग ਵਿੱਚ फ्रॉड्स ਕੀਤੇ ਸੀ ना ਸੈਕੰਡਰੀ ऑब्जेक्टिव ਵਿੱਚ डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ टॉपिक ਸੀ ना मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। ठीक है, मेजरली ਉਹ वाले टॉपिक ਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਵਾਊਚਿੰਗ ऑफ परचेज बुक। ठीक है, परचेज बुक का राजे तुहानूं पता ही है सारिਆਂ ਨੂੰ परचेज बुक च की चीज़ रिकॉर्ड होंदी है, ਜਿਹੜੀਆਂ क्रेडिट परचेजिज होंदियां। ठीक है, वो गुड्स ਜਿਹੜੀਆਂ बिजनेस ने परचेज कीतियां सप्लायर तो बट ਉਹਦੀ हजे पेमेंट नहीं ਦਿੱਤੀ, ना कैश च ना किसी बैंक के थ्रू। ठीक है, तो ਉਹਦੀ नॉर्मल ਜਿਹੜੀ जर्नल एंट्री होंदी है की होंदी है, परचेजिज अकाउंट डेबिट टू ਜਿਹੜੀ भी कंपनी तो मटीरियल आया है ना, सपोज ABC कंपनी तो आया था ABC लिमिटेड। ठीक है, तो कित्थे कित्थे दी एंट्री जाएगी, एक तो परचेज बुक च। ठीक है, एक जिन्हें सप्लाई किया। ठीक है, क्रैडिटर के अकाउंट च या उहदे लैजर विच। नैक्सट देखो इहदा मेन एम तो यही है। ठीक है, कि क्रैडिट ते गुड्स रिसीव करना। ठीक है, दूजा इन्हें की देखना हुंदा भी एक्चुअल च उही गुड्स ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੁੱਕ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਐਂਟਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਹਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਡੀਟਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਆਡੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਊਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਥੋਰੋ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹਰ ਐਂਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਡੀਟਰ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥੋਰੋ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਕੱਲੀ ਐਂਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਊਚ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰਲੀ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਸੇਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਾਊਚਿੰਗ ਆਡੀਟਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਆਡੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਖ ਲਓ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਬਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਸਟ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੋਲ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ।
ठीक है, कि कंपनी किहड़े लैवल ते ऑपरेट कर रही है। ठीक है, सो इहदे विच इन्हां ने जिहड़ा एग्जाम्पल लित्ती हुई है इंटरनल कंट्रोल दी, वो बेसिकली उन्हां दी है जिहड़ियां वड्डियां ऑर्गेनाइजेशनस हुंदियां। ठीक है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। सो फस्ट इहदे विच की है राजे कि हुण कंपनी नूं कोई मटीरियल चाहिदा है। ठीक है, वो मटीरियल या कोई गुड्स चाहिदियां ने। ठीक है, वो गुड्स किहड़े डिपार्टमेंट नूं चाहिदियां ने। ठीक है, सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नूं चाहिदियां ने। ठीक है, रॉ मटीरियल उन्होंने लगता भी खत्म होने वाला है तो उन्होंने छेती छेती मंगवाइए ताकि प्रोडक्शन ना खत्म हो जाए। ठीक है, या फिर स्टोर कीपर हुंदा राजे, उन्होंने पता हुंदा भी उहदे स्टोर विच पर्टिकुलर किहड़ा समान घट है। ठीक है, तो उन्होंने होर मंगवाना पैना। ठीक है, सो ईदर स्टोर कीपर या फिर कोई होर डिपार्टमेंट का परसन। ठीक है, एक परचेज रैक्विजिशन बनाएगा। ठीक है, की बनाएगा, परचेज रैक्विजिशन। ठीक है, वो जी परचेज रैक्विजिशन है राजे, वो बना के परचेज डिपार्टमेंट नूं दित्ती जाएगी। ठीक है, किहड़े डिपार्टमेंट नूं, परचेज डिपार्टमेंट नूं। परचेज डिपार्टमेंट किहड़ा हुंदा, जिहड़ा वो समान खरीद के लिआंदा। ठीक है, वो डिपार्टमेंट किहड़ा हुंदा, परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, जिहड़ा कंपनी विच गुड्स खरीदण दा काम करदा। ठीक है, नैक्सट देखो राजे, ये जिहड़ी परचेज रैक्विजिशन बनी है। ठीक है, एवें नहीं गा कि कोई भी इंपलॉय उठ के बना देगा भी हाँ चीज़ चाहिए है, इदां नहीं हुंदा। ये जिहड़ी परचेज रैक्विजिशन है, इनूं बनाउण लई जिहड़े डिपार्टमेंट नूं चाहिदी है, सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नूं चाहिदी है। ठीक है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला जिहड़ा परसन है, ठीक है, वो अपने पहला हैड कोल जाएगा भी अपने डिपार्टमेंट च आ चीज़ की कमी आ रही है तो आपां नूं मंगवा लैनी चाहिदी है। ठीक है, फिर जो हैड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, इत्थे किन्नू रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नूं। ठीक है, हैड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जदों अप्रूव करेगा, ठीक है, उन्होंने कहेगा भी हाँ चल तू परचेज रैक्विजिशन बना लै। ठीक है, उदों ही ये बनाई जाती है। ठीक है, ये राजे डिपेंड करता है कि कंपनी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम यूज़ करती है कि मैनुअल सिस्टम यूज़ करती है। ठीक है, जे कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम यूज़ करती है तो उन्होंने सिस्टम विच इनू जनरेट करने का तरीका होंदा है, नहीं तो फिर मैनुअली भी लिख के दे सकती है। ठीक है, प्लस ये साइन कौन करेगा, परचेज रैक्विजिशन प्रॉपर साइन कौन करेगा, हैड ऑफ द डिपार्टमेंट, है ना, क्योंकि वो की एक रिस्पोंसिबल परसन है अपने डिपार्टमेंट का, तो ये डिकलेयर कर रहा भी वाकई ही जिहड़ा कंपनी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उन्होंने इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नैक्सट देखो राजे, जो परचेज डिपार्टमेंट को रैक्विजिशन पहुँचेगी। ठीक है, उदों परचेज डिपार्टमेंट की करेगा, उहदे सप्लायर्स लभेगा भी ये चीज़ किहड़े परसन किहड़ी कंपनी तो या परसन तो आपां खरीद सकते हैं। ठीक है, वो सप्लायर्स नूं टेंडर भेजदा है। ठीक है, कि सानू आ मटीरियल चाहिए, इन्ने टाइम ते चाहिए, ये साडियां कंडीशनस ने, असी कैश पेमेंट करांगे, असी क्रैडिट परचेज करनी है। ठीक है, इन्ने टाइम बाद फिर तुहानू 3 महीने बाद पेमेंट देवांगे, उहदी सानू आ क्वांटिटी चाहिए है, तुसी डिलीवर करोगे, डिलीवरी एक्सपेंसिस किहदे होणगे। ठीक है, सारियां चीज़ां एक टेंडर च बनाईयां जांदियां, तो जिन्नू भी कंपनी नूं लगदा भी हाँ मैं इस परसन तो समान या कंपनी तो समान खरीद सकदा, उन्होंने ये टेंडर भेज दिता जाता है। ठीक है, जिवें टेंडर तुसीं देखे ही होणगे, न्यूज़पेपर च बहुत आउंदे हुंदे आ, है ना, कि गवर्नमेंट नूं जी आ चीज़ां चाहीदियां ने, इन्ने कंप्यूटर चाहिए ने, या रोड बनाउण लई इन्ना मटीरियल चाहिए, देखिया कदी? चलो न्यूज़पेपर च देखियो। ठीक है, तुहानूं ज़्यादा क्लैरिटी हो जूगी उस तो। ठीक है, सो टेंडर दे दूगा सप्लायर्स नूं, फिर सप्लायर्स की है उहदे विच उहदे जवाब विच दस्सणगे भी असी किन्ने प्राइस ते चीज़ तुहानूं अवेलेबल करवा सकते हैं, किन्ने टाइम ते करवा सकते हैं। ठीक है, फिर जिहड़े भी सप्लायर ने अमाउंट सब तो घट मंगी हुंदी है, ठीक है, गुड्स दी, ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਸਪਲਾਇਰ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, है ना, ये सारिया कंडीशनस किहड़ियां हो गई, फेवरेबल कंडीशनस हो गई। ठीक है, उस तो बाद की है हुण परचेज आर्डर उन्होंने बनाता,
परचेज डिपार्टमेंट ने, ठीक है। वो परचेज डिपार्टमेंट ने बना के ऑर्डर देता उन्होंने सप्लायर नूं, ठीक है। हुण सप्लायर फिर की करेगा, गुड्स सेंड कर देगा, ठीक है, कंपनी च। हुण जदों सप्लायर गुड्स सेंड करेगा कंपनी ते, ठीक है, सब तो पहलां किहदे कोल आउणगीਆਂ गुड्स, गेटकीपर कोल। गेटकीपर उन्होंने देखेगा भी हाँ ये किहड़े ऑर्डर ते आईयां ने, ठीक है, कंपनी ने किहड़ा ऑर्डर नंबर दिता सी, ये उस ऑर्डर नंबर ते गुड्स आईयां ने, फिर वो चैक करेगा। फिर अपने गेटकीपर कोल एक इनवर्ड रजिस्टर हुंदा है, ठीक है, उहदे ते एंट्री करता वो, ठीक है। दैन वो गुड्स जाती है राजे स्टोर डिपार्टमेंट कोल। फिर उत्थे जिहड़ा स्टोर कीपर हुंदा है, स्टोर कीपर ये देखदा है भी किहड़े परचेज ऑर्डर दियां गुड्स आईयां ने, ठीक है, जिन्ना मंगवाइयां सन गुड्स उन्नियां ही आईयां ने, ठीक है, कोई वो तो नहीं कि भी घट तो नहीं आईयां, ठीक है। दैन वो की करदा है, उहदे कोल ना 3 इनवॉइस हुंदे ने, 2-3 इनवॉइस दियां कॉपीज हुंदियां ने, ठीक है। एक इनवॉइस हुंदा, एक चलान हुंदा, एक डुप्लीकेट ऑफ चलान हुंदा, ठीक है, जिहड़ा डिलीवरी लैके आया हुंदा है गुड्स दी। तो जिहड़ा स्टोर कीपर है उन्हां तो एक जिहड़ा एक चलान हुंदा है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਤੇ साइन कर दिंदा भी हाँ कंपनी च गुड्स रिसीव हो गईयां, ठीक है। उन्हां ते साइन करके वो जिहड़ा परसन समान लैके आया हुंदा, ठीक है, उन्होंने थमा दिंदा, जाके सप्लायर नूं दे दिंदा भी हाँ मैं गुड्स वाकई उस कंपनी च छड्ड के आया जिथे तुसीं किहा सी, ठीक है, भेजण लई, ठीक है। उन्होंने की कहते हैं रिसीविंग नोट, ठीक है, की कहते हैं इनू रिसीविंग नोट, ठीक है। दैन राजे ਜਿਹੜੀਆਂ 2 इनवॉइस रह गईयां, ठीक है, एक उन्हां चों दोनों इनवॉइस कित्थे भेज दित्तियां जांदियां, अकाउंट्स परचेज डिपार्टमेंट च, ते परचेज डिपार्टमेंट अगे किनू भेज दिंदा है, अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट नूं जदों स्टोर कीपर इनवॉइस भेजदा तो परचेज डिपार्टमेंट नूं पता लग जांदा भी हाँ ऑर्डर आ गया, ठीक है, भी उन्हों का काम पूरा हो गया। नैक्सट फिर वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट चल जांदियां, ठीक है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट च काहदे लई जांदियां ने, पेमेंट परपज़ तो भी हाँ सानू गुड्स रिसीव हो गईयां, कंपनी च गुड्स मिल गईयां ने, ठीक है, हुण आपां इन्हां दी जिहड़ी पेमेंट है वो कर सकते हैं, ठीक है। दैन अकाउंट डिपार्टमेंट की करदा राजे, वो वैरीफाई करता है, ठीक है। वैरीफाई किवें करेगा कि जिहड़ा कंपनी ने परचेज ऑर्डर बना के भेजिया सी, ठीक है, तो जिहड़ी सप्लायर ने इनवॉइस भेजी है उहदे विच जिहड़ी अमाउंट है वो सेम है, ठीक है, उहदे विच जिहड़ी क्वांटिटी है वो सेम है, ठीक है। ये सारियां चीज़ां चैक करन तो बाद, वैरीफाई करन तो बाद, आपस विच मैच करन तो बाद वो की करदा है, या तो सप्लायर नूं पेमेंट कर दिंदा है, ठीक है, या फिर उहदे अकाउंट च उन्नी अमाउंट क्रैडिट कर दिंदा, ठीक है। जे ते सप्लायर नूं कैश पेमेंट होनी हुंदी है, ठीक है, या बैंक के थ्रू पेमेंट होनी हुंदी है, फिर वो की करेगा, कैश बुक च एंट्री कर देगा तो सप्लायर नूं एंट्री कर देगा, है ना। जे क्रैडिट परचेज है, ठीक है, फिर वो की करेगा, परचेज बुक च एंट्री कर देगा, तो होर कित्थे करेगा, सप्लायर नूं क्रैडिट कर देगा, ठीक है। सो देखो ये विच किन्ने जाने इनवॉल्व है ना परचेज करन विच, जे आपां देखिए 4-5 जाने तो है ही नहीं। सो ये जिहड़ा इंटरनल कंट्रोल है इहदे विच की है कि फ्रॉड या एरर दे चांस घट हो जाते हैं, प्लस मैन्यूपुलेशन दे भी चांस घट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्ने जाने बंदे हैं, इन्ने जाने परसन इनवॉल्व हैं, तो देयर आर चांसिस कि जे कोई एक थोड़ी जी भी गलती करूगा तो दूजा बंदा उन्होंने फड़ लूगा इंटरनल चैक के थ्रू, ठीक है। सो ये सारा की सीगा प्रोसीजर सीगा कि इंटरनल चैक कंट्रोल दा सिस्टम की है, ठीक है। सो हुण इत्थे गल किहदी आ जांदी है, ऑडिटर दी, ठीक है। ऑडिटर की कहंदा है, ऑडिटर नूं की काम करना चाहिए, ठीक है, वाउचिंग करन लई, परचेज दी वाउचिंग करन लई। आ देखो 3 पॉइंट्स इन्हां ने दित्ते हुए ना, इहदे विच की है, पहलां तां की है स्टडी करेगा भी कंपनी दा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किहो जिहा, ठीक है। दैन वो ये देखेगा भी वो इंटरनल कंट्रोल विच जदों परचेज की गल आती है तो वो किन्ने परसनस इनवॉल्व ने, ठीक है, उन्हां दी किहड़ी जॉब पोजीशन है, की उन्हां दी अथॉरिटी है, की उन्हां दी रिस्पोंसिबिलिटी है, ठीक है। दैन वो ये देखेगा कि जदों गुड्स रिसीव होंदी है तो उहदा की प्रोसीजर है, ठीक है, उन्होंने कौन रिसीव करता है, किवें इनफॉर्म किया जाता है भी हाँ गुड्स मिल गईयां कि नहीं,
ठीक है। ये सारिया चीज़ां स्टडी करन तो बाद ऑडिटर ये डिसाइड करता है भी उन्हें जिहड़ी वाउचिंग करनी है परचेज की वो थॉरो करनी है, ठीक है, कि उपरों उपरों करनी है, ठीक है। जे तो सारे सिस्टम अच्छा है, ठीक है, वधिया है, कोई ये दिक्कत नहीं है, फिर तो ऑडिटर की है उपरों उपरों ऑडिटिंग कर सकता है कि हाँ ठीक है ना, बैटर है, डिपेंड कर सकता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ते। पर उन्होंने जे लगता है भी नहीं एप्रोप्रीएट नहीं है, कुछ डिफैक्ट लगते हैं उन्होंने, या उन्होंने लगता है भी एक्चुअल च प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा, तो फिर ऑडिटर की है थॉरो चैकिंग करता उन्होंने चीज़ों की, ठीक है, सारिया परचेज की। ला नैक्सट देखते हैं राजे ऑडिटर ड्यूटी वाइल वाउचिंग क्रैडिट परचेजेस, ठीक है, कि क्रैडिट परचेज करते हुए ऑडिटर की ड्यूटी बनती है। ये देखो राजे पहला आ जाऊगा एग्जामिन इंटरनल चैक, ठीक है। पहला की है इंटरनल चैक देखूगा किहो जिहा, आप जो पहला सारा प्रोसीजर करके आए ना इंटरनल कंट्रोल का, ये इंटरनल चैक ही है, ठीक है, जिथे एक काम का जिथे एक परसन का काम नैक्सट परसन ऑटोमैटिकली चैक कर रहा प्लस अपना काम अगे भी कर रहा, ठीक है। ये की आ जाऊगा राजे इंटरनल चैक नू एग्जामिन करन दे विच कि इंटरनल चैक किहो जिहा। पहली गल तो आ जाएगी कि प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जा रहा सारे परचेज ऑर्डर का कि नहीं, ठीक है। दैन कॉपी जिहड़ी है परचेज ऑर्डर की वो अकाउंट डिपार्टमेंट नू भेजी जा रही है, ठीक है, उन्होंने एडवांस च इनफॉर्म करवाया जा रहा है भी हाँ असी ये परचेज की है तो फ्यूचर विच दी पेमेंट आएगी, ठीक है। दैन जिन्नियां भी गुड्स रिसीव हुई उन्होंने रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड अकाउंट डिपार्टमेंट नू भेजा जा रहा है, ठीक है। दैन पेमेंट जिहड़ी अकाउंट डिपार्टमेंट करता है, ठीक है, फाइनैंस डिपार्टमेंट करता है, वो वैरीफिकेशन करन तो बाद करता है कि एवं कर दिंदा, ठीक है। वैरीफिकेशन किहदे नाल करेगा, परचेज ऑर्डर नाल, जिहड़ा इनवॉइस आया उहदे नाल, ठीक है, तो जिहड़ियां गुड्स रिसीव होईयां ने उहदे नाल। दैन नैक्सट पॉइंट देखो राजे ऑडिटर ये चैक करेगा कि जिहड़ी परचेज बुक है उहदे विच कल्लियां क्रैडिट परचेज रिकॉर्डिड होण, ऐ ना होवे कि कैश परचेज की है तो वह भी चक के परचेज बुक च करती, ठीक है। नैक्सट देखो वैरीफाई करना परचेज इनवॉइस, कॉपी ऑफ परचेज ऑर्डर, ठीक है, गुड्स रिसीव नोट, गुड इनवर्ड बुक एंड कॉपी ऑफ चलान फ्रॉम सप्लायर, ठीक है। परचेज बुक नूं हुण किहदे नाल वैरीफाई किया जा रहा, ठीक है, उहदी वाउचिंग किहड़ियां चीज़ां नाल कीती जा रही है, एक तो जिहड़ा इनवॉइस बना के दिता है, ठीक है, जिहड़ा परचेज डिपार्टमेंट ने ऑर्डर बनाया सीगा परचेज का, ठीक है, जिहड़ा स्टोर कीपर ने रिकॉर्ड रखा होया कि इन्नियां गुड्स रिसीव होईयां ने, गेट कीपर का जिहड़ा इनवर्ड बुक एंट्री है भी हाँ कंपनी च इन्नियां गुड्स अंदर आईयां ने, ठीक है। दैन सप्लायर ने जिहड़ी चलान की कॉपी भेजी है, ठीक है, इन्ना सारिਆਂ नाल ऑडिटर की है वैरीफाई कर सकता या वाउचिंग कर सकता। नैक्सट देखो राजे कि जिहड़ी क्वांटिटी है गुड्स की, ठीक है, कि किन्नियां गुड्स मंगवाइयां तो किन्नियां आईयां, ठीक है, इन्हों वैरीफाई करना कि ये जिहड़ी परचेज ऑर्डर है तो इनवॉइस उहदे विच सेम है, ऐ तो नहीं भी दोवां विच अलग अलग है, ठीक है। दैन नैक्सट देखो प्राइस चार्जड, कि जिन्ना एक चीज़ का प्राइस मैंशन किया है वो किहदे अकॉर्डिंग किया होया है, ठीक है, जदों सप्लायर ने जिहड़ी कोटेशन भेजी सी उहदे अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। ऐ तो नहीं भी उन्हें कहा सीगा भी मैं तुहानूं एक चीज़ 50 रुपए की दे दूँगा पर उन्हें इनवॉइस 1 रुपये 60 रुपए के हिसाब नाल बनाया होया, ठीक है, तो वो चीज़ प्राइस भी सेम होना चाहिए, ठीक है। कोटेशन की हुंदी है राजे, कोटेशन हुंदा इत्थे कि जदों परचेज डिपार्टमेंट टेंडर भेजदा, ठीक है, उहदे रिप्लाई च जिहड़ा सप्लायर है दसदा भी मैं तुहानूं इन्ने ते आ चीज़ दे दूँगा, है ना। सपोज उन्होंने कोई टेंडर भेजा भी सानूं रॉ मटीरियल चाहिए तो सप्लायर कहता भी मैं तुहानूं 10 लाख रुपए ते आ चीज़ सेल कर दूँगा, तो जिहड़ा 10 लाख की अमाउंट उहदी की है कोटेशन है, ठीक है। नैक्सट देखो जिहड़ी परचेज है, ठीक है, कि गुड्स नूं परचेज करना, ठीक है, जिहड़ी परचेज रिक्विजिशन की स्टार्टिंग विच गल कीती है, ठीक है, उन्होंने प्रॉपरली सैंक्शन किया गया रिस्पोंसिबल ऑफिसर वालों, जिवें आप एग्जाम्पल लिती सी कि परचेज डिपार्टमेंट नूं कोई रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो रिक्विजिशन किन्ने साइन की सी,
ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੈਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ ਕਿ ਉਹੀ ਗੁੱਡਸ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਪਰਪਸ ਲਈ ਗੁੱਡਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਲੱਸ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਆਡਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਆਡਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 19-20 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 19-20, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 18-19 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦਾ ਆਡਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਈਅਰ ਦੀ ਹੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਨਾ ਹੋਣ ਗੁੱਡਸ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੋਣ? ਕੰਪਨੀ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਹੋਣ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਹੋਣ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਡੀਟਰ ਵਾਊਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟੈਂਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਵੋਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਫਰੋਡ ਜਾਂ ਐਰਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਟੋਟਲਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਰਥਮੈਟੀਕਲ ਐਰਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਸਟਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸੇ ਹੀ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁੱਡਸ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਆਈਆਂ ABC ਤੋਂ ਅਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰਤੀ XYZ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ ਬਟ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਇਨਵੋਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਨਲੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਰੀਜਨਲ ਇਨਵੋਇਸ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਇਨਵੋਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਨ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਬਲ ਸ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਡੀਟਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੰਗਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਪਰਚੇਜ਼। ਸੋ ਤੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਵਾਊਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਦ ਮੰਥਸ ਆਫ ਫਸਟ ਮੰਥ ਐਂਡ ਦ ਲਾਸਟ ਮੰਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਰੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਡਿਫਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 2 ਮੰਥਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੇਲਸ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਨ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਬੁੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਬਸਿਡਰੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਬੁੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜੇ? ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਿਗ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਕੋਲ ਗੁੱਡਸ ਆਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲੋਡ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਗੁੱਡਸ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਰੈਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ,
ठीक है। फिर तो गुड्स रख लित्तियां जांदियां, इन एनी केस वो मना कर दिंदा भी नहीं ये साडी डिमांड दे अकॉर्डिंग नहीं हैगियां, तो गुड्स नूं रिजैक्ट कर दित्ता जांदा, ठीक है। तो उन्हां नूं नाल दी नाल वापस कर दित्ता जांदा, ठीक है। तो जिहड़ा स्टोर कीपर है ਉਹਦੀ चलान दी इनवॉइस ते की लिख देगा भी गुड्स रिजैक्टेड, ठीक है। सारा लॉट भी रिजैक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ कु लॉट रख के बाकी दियाँ गुड्स भी रिजैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पार्टली रिजैक्ट भी कर सकते हैं तो फुली रिजैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। हुण इहदी रिजैक्शन की इनफॉर्मेशन किहनूं दित्ती जाती है, परचेज डिपार्टमेंट नूं प्लस अकाउंट्स डिपार्टमेंट नूं, ठीक है। इनफॉर्मेशन दित्ती जाती है ताकि परचेज डिपार्टमेंट नूं पता लग जाए भी ये दोबारा खरीदण वाला या सप्लायर नाल गल करके दोबारा मटीरीयल होर मंगवावे, ठीक है। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट नूं तां दस्सिया जांदा है ताकि वो कोई पेमेंट ना करे उस सप्लायर नूं उन्हां गुड्स दी जिहड़ियां रिजैक्ट हो गईयां, ठीक है। सो हुण जदों इनफॉर्मेशन चली गई उन्हां नूं उस तो बाद की हुंदा राजे, मोस्टली जिहड़ा परचेजर हुंदा ना वो क्रैडिट नोट लै सकदा हुंदा सप्लायर तो, ठीक है। क्रैडिट नोट या फिर की करेगा वो अपने वालों डैबिट नोट बना के दे देगा भी इस चीज़ की असीं तुहानूं पेमेंट नहीं करांगे। सपोज जिवें 10 लाख का मटीरियल आया सीगा, उस चों क्रैडिटर ने जिहड़ा सॉरी इंजीनियर सीगा उन्हें 2 लाख का मटीरियल रिजैक्ट करता है ना, तो हुण जिहड़ा स्टोर कीपर है या अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उन्होंने की करेगा 2 लाख का डैबिट नोट बना के दे देगा कि असी तेरे 10 लाख की जी अमाउंट साडे वाल पेंडिंग है, ठीक है। उहदे चों तैनूं किन्नी पेमेंट देवांगे, सिर्फ 8 लाख की देवांगे क्योंकि असी 2 लाख का समान वापस कर रहे हैं, ठीक है। तो उहदे लई असी तैनूं डैबिट नोट इशू कर रहे हैं, ठीक है। जे सप्लायर उधरों कोई नोट भेजे जिहड़ियां गुड्स रिजैक्ट हो गई तो वह किहड़ा नोट हुंदा है, क्रैडिट नोट, ठीक है। सो ये क्रैडिट नोट डैबिट नोट बहुत जरूरी होंगे हैं परचेज रिटर्न विच, ठीक है। इन्हां दे बेस ते ही पता लगता है कि किन्नियां गुड्स रिजैक्ट हुई सी, ऑडिटर इन्हां दे बेस ते ही कन्फर्म करता, ठीक है। ये सीगा प्रोसीजर इंटरनल कंट्रोल का, ठीक है। उस तो बाद हुण ऑडिटर की की ड्यूटी है, ठीक है। उन्हें वाउचिंग किवें करनी है, पहला देखो राजे वो ये देखेगा कि डैबिट नोट भेजिया कंपनी ने सप्लायर नूं, ठीक है, जिन्ने दियां गुड्स रिजैक्ट हुई सी कि नहीं, या फिर क्रैडिट नोट रिसीव किया गया सप्लायर तो भी हाँ असीं तुहानूं 2 लाख की पेमेंट तुसीं जे नहीं कर रहे तो इट्स ओके, है ना। कंपनी ने की भेज एज अ परचेजर कंपनी ने की भेजना है, डैबिट नोट, ठीक है। एज अ सैलर सप्लायर ने की भेजना है, क्रैडिट नोट, ठीक है जी, कन्फ्यूज़ नहीं होना। नैक्सट देखो राजे वो ये देखेगा कि क्वांटिटी जिहड़ी रिटर्न की गई है, ठीक है, उन्होंने क्रॉस वैरीफाई करेगा स्टोर कीपर के रिकॉर्ड नाल, ठीक है। प्लस जिहड़ा गेट कीपर कोल रिटर्न आउटवर्ड रजिस्टर है, आउटवर्ड रजिस्टर है, ठीक है। गेट कीपर कोल 2 तरह के रजिस्टर होंगे, एक तो इनवर्ड रजिस्टर, एक आउटवर्ड रजिस्टर। जो गुड्स आंदियां तो किहदे च रिकॉर्ड होंदियां, इनवर्ड च, जो वापस जांदियां या बाहर घल्लियां जांदियां कित्थे होंदियां, आउटवर्ड रजिस्टर विच। सो स्टोर कीपर का जिहड़ा रिकॉर्ड होएगा, है ना, या अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जिहड़ा रिकॉर्ड होएगा उन्होंने किहदे नाल वैरीफाई किया जाएगा, गेट कीपर के रिकॉर्ड नाल, ठीक है। फिर अमाउंट वैरीफाई की जाऊगी क्रैडिट नोट की, ठीक है। दैन परचेज रिटर्न देखी जाएगी भी उस ही ईयर की है, ठीक है। ऐ तो नहीं भी किसी होर ईयर की है तो मैंशन किसी होर ईयर च हुई है, ठीक है। मतलब अकाउंटिंग पीरीयड सेम होना चाहिए, ठीक है। दैन ये भी उही है राजे कि फस्ट मंथ एंड लास्ट मंथ नूं केयरफुली वाउच करना चाहिए क्योंकि ये मैनीपुलेशन या एरर के चांस ज़्यादा होंगे हैं, ठीक है। जे प्रॉफिट घटाना वधाना है तो ये बेस ते घटाया वधाया जा सकता, ठीक है। चलो सेल्स आप नैक्सट टॉपिक कर लेंगे, सेल वाला टॉपिक, ओके बच्चे हो गया।